परचेजिंग फॉरेन करेंसी क्या नंबर है? व्हाट इज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेजिंग फॉरेन करेंसी? सो नंबर क्या है उस फॉर्म का? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेजिंग फॉरेन करेंसी, व्हाट इज द नंबर? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेजिंग फॉरेन करेंसी, व्हाट इज द नंबर? नंबर कौन सा है? Yes, very correct. It is form A2. Question number 2. So question number 1 का answer A2. Question number 2. Purchase of foreign currency in cash. Maximum amount. How much we can deposit? Purchase of foreign currency, foreign exchange in cash. Maximum how much amount can be deposited? Question number 2. Maximum how much amount can be deposited? Question number 2. Question number 2. Maximum how much amount can be deposited? Purchase of foreign currency in cash. Maximum how much amount can be deposited? Question number 3. What is maximum amount of पहले question number 2 answer will be rupees 50,000. Question number 2 answer will be 50,000. Question number 3. What is maximum amount of foreign currency within total foreign exchange? So what is the maximum amount of foreign currency notes लिख देंगे हम. What is maximum amount of foreign currency notes? Which we can carry as part of foreign exchange. So $50,000 नहीं, 50,000 rupees question number 2 के लिए. Question number 3 के लिए so amount is $3,000. Question number 3 amount is $3,000. $3,000 question number 3 के लिए answer. How much foreign currency can be retained on return from abroad? Question number 4. How much foreign currency can be retained? So this is 2,000 US dollars. So this is US dollars 2,000. Question number 4. Question number 5. Declaration of CDF is required when? CDS का declaration कब चाहिए या कब मैंडेटरी हो जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बनता है US डॉलर्स 3,000. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बनता है $2,000. क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू इज मोर देन $10,000. More than $10,000. Question number 5 के लिए आंसर. How much foreign exchange for private visit abroad? Question number 6 के लिए how much foreign exchange for private visit abroad? तो इसके लिए आंसर बन जाएगा $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर. क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. Question number 7. How much foreign exchange for business trip abroad? Question number 7. How much foreign exchange for business trip abroad? So $250,000 US dollars per financial year. Question number 6 के लिए आंसर क्या बनेगा? 6 का आंसर $250,000. 7 का आंसर $250,000. 8th
How much foreign currency for visit to Bhutan? So no foreign currency, nil, only Indian currency. Question number 9. How much foreign exchange for medical treatment abroad? For medical treatment, question number 9. So without documents, without proof, $250,000 US. With the documents, no limit. Question number 10. How much foreign exchange under LRS? So under LRS, it is $250,000 US per financial year. Question number 11. Reporting of LRS. When LRS का reporting कब किया जाएगा? So this reporting is on daily basis. Reporting is on daily basis. Question number 12. Nostro account को क्या कहते हैं? Nostro account is known as our account with you. Our account with you. Question number 13. Loro account. So Loro account is called their account with them. Their account with them. Time limit for surrender of foreign exchange unused. Unused foreign exchange को surrender करने का time 180 days. How much foreign currency notes for visit to Iraq? So इराक को विजिट करने के लिए amount is $5,000. So these are the answers to various questions. So आपका किसी प्रकार का कोई confusion हो, you can raise your question. So किसी का कोई question हो, you can type your question. If anyone having any confusion, please type your question. तो भाई क्विकली कंफर्म कर देंगे नो क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्विकली टाइप कर दें नो क्वेश्चन. So if you have some question, you can type your question. Otherwise quickly type कर दीजिए no question. कर देंगे टाइप no question if you don't have any question. चलिए अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं आज के लिए. So that is foreign exchange rates. So question number 10 का आंसर it is already given here. How much foreign exchange LRS में $250,000. Question number 10 answer is given here $250,000 per financial year. चलिए अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की. So foreign exchange rates. So different type of foreign exchange rates. Different वेरिएंट्स कौन कौन से इन रेट्स के. तो इन रेट्स को हम तीन तरह से देखते हैं. 3 टाइप्स. वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेट्स. सेकेंड कैटेगरी इज बाइंग एंड सेलिंग रेट्स. थर्ड कैटेगरी इज स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स. सो ये 3 कैटेगरी हमारे पास रेट्स की. डायरेक्ट रेट्स एंड इनडायरेक्ट रेट्स, बाइंग एंड सेलिंग रेट्स एंड स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स.
सो सबसे पहले हम टेक अप करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेट्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेट्स. क्वेश्चन है फॉरेन करेंसी एंड ट्रेवलर चेक का रिटर्न टाइम सेम है क्या? यस, इट इज सेम 180 डेज. सो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रेट्स की. सो डायरेक्ट रेट में फर्स्ट डायरेक्ट रेट. डायरेक्ट रेट हम कब यूज करते हैं या डायरेक्ट रेट क्या होता है? सो दिस रेट इज कोटेड एज फिक्स्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फिक्स्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी and variable unit of home currency. Fixed unit of foreign currency and variable units of home currency. या इसको एक और नजरिए से भी देखा जा सकता है. देयर इज अनदर व्यू विच वी कैन टेक. तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट रेट की. तो $1 इज इक्वल टू ₹66.51 और ₹66.74. तो इस केस में फॉरेन करेंसी फिक्स्ड यूनिट है. इंडियन करेंसी INR जिसको लिखते हैं ये वेरिएबल है. तो यहां हम देख सकते हैं इट इज वेरिएबल. तो जब रेट इस प्रकार से कोट किया जाए वी कॉल इट डायरेक्ट रेट. तो हम इसको डायरेक्ट रेट कहते हैं. सो इंडिया में हम डायरेक्ट रेट यूज करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द करेंसीज. इन इंडिया वी मेक यूज ऑफ डायरेक्ट रेट फॉर मोस्ट ऑफ द करेंसीज. कुछ गिनी चुनी करेंसीज हैं जिनके लिए हम डायरेक्ट रेट कोट नहीं करते, यूज करते, अदरवाइज वी यूज डायरेक्ट रेट्स. So direct rate is used for most of the currencies in India. Direct rate में प्रॉफिट कमाने के लिए, so to earn profit, while using direct rate, we use the principle, maxim principle, buy low, sell high. सस्ता खरीद के हम महंगा बेचते हैं. बाय लो सेल हाई. सो दिस इज द मैक्सिम दैट इज रूल द प्रिंसिपल टू अर्न प्रॉफिट. तो अगर डायरेक्ट रेट्स गिवन है और हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हम लो रेट्स के ऊपर खरीदेंगे और हायर रेट्स के ऊपर बेच देंगे. एंड इन दैट प्रोसेस वी विल गेट प्रॉफिट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डायरेक्ट रेट्स क्या होते हैं जरा कंफर्म कर देना. व्हाट इज डायरेक्ट रेट? डायरेक्ट रेट के बाद अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट रेट्स की. इनडायरेक्ट रेट्स. सो इनडायरेक्ट रेट्स हम कहते हैं उन रेट्स को वेयर देयर इज अ फिक्स्ड यूनिट ऑफ होम करेंसी, fixed unit of home currency and variable units of foreign currency. Fixed unit of home currency and variable units of foreign currency. For example, 100 rupees is equal to US dollars 1.35 or 1.31, or it could be like this also. ₹1 equal to 0.0135 US dollars. सो ₹1 में भी कोट कर सकते हैं, ₹100 में भी कोट हो सकता है. सो इट विल बी 0.0135 US dollars और $0.0131. अगर रुपये में दिखाएंगे ऐसे बन जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेट. इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेट.
इनडायरेक्ट रेट को यूज करते हुए व्हाट इज द रूल टू मेक प्रॉफिट? सो इनडायरेक्ट रेट को जब हम यूज करेंगे तो दिस इज द रूल विच वी विल फॉलो. बाय हाई सेल लो. बाय हाई महंगा खरीदो सस्ता बेचो. बाय हाई सेल लो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट रेट्स. वेरी ऑफन क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि हम डायरेक्ट रेट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे या इनडायरेक्ट रेट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो अब उसके रूल नोट कर लेंगे. कन्वर्शन ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. तो ये कन्वर्शन हम कैसे करेंगे? सो पहले हम ले लेते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को. तो 1 डिवाइडेड बाई डायरेक्ट. अगर डायरेक्ट रेट हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाई डायरेक्ट रेट, तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट रेट. तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट. एक एग्जांपल ले लेंगे. यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹80. सो कैलकुलेट इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट कितना होगा? कैलकुलेट कर दीजिए इनडायरेक्ट को. $1 इज इक्वल टू ₹80. तो इसका इनडायरेक्ट रेट क्या बनेगा वो कैलकुलेट कर दीजिए. व्हाट विल बी इनडायरेक्ट रेट? कर दीजिए कैलकुलेट इनडायरेक्ट रेट को. सो इनडायरेक्ट रेट कितना हो जाएगा? कर दीजिए कैलकुलेट. सो इट विल बी 0.0125. So this means ₹1 will be equal to 0.012 US. I hope I am very very clear about this. एकदम हमें क्लैरिटी है कि हमने कैसे कन्वर्जन करना है. सो ये एकदम क्लियर है सभी को. अब हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है. सो फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, हाउ टू कैलकुलेट? सो इट विल बी कैलकुलेट लाइक दिस. 1 डिवाइडेड बाई इनडायरेक्ट रेट. 1 डिवाइडेड बाई इनडायरेक्ट रेट. तो क्वेश्चन कर लेते हैं. ₹1 is equal to 0.0129. So calculate US dollar rate. Calculate US dollar rate. कर दीजिए कैलकुलेट US dollar rate को.